Videos on. Real Parekh. Sir, I'll on and off your video. Sure. The optional bola to look at the strength of the class now. Everyone wants to study for marks. Chalo. Let's continue. What is a BRS? Why do we learn this chapter? What is the meaning of this chapter? Let's focus. Bank reconciliation statement. Okay. BRS का मतलब होता है बैंक reconciliation statement. ठीक है. Now, suppose you have learned already cash book, right? Cash book आपने learn किया हुआ है already. This is suppose your cash book, and this is suppose your passbook. Now, what is a cash book and what is a passbook? We have learned something that is called as cash book. You remember what is a cash book? All cash and bank transactions are recorded in the cash book. Exactly. We use this subsidiary book to record all the cash and bank related transactions. Okay. We use this cash book to record all the cash and bank related transaction. Already we have done so many sums based on cash book. Oh, cash book should be well versed with all of you. Okay. What is a cash book? Cash book is nothing but our own subsidiary book which we use to record all the cash and bank related transactions. ठीक है. ये कैश बुक का फॉर्मेट का एकदम छोटा सा हिस्सा है. कैश बुक का बड़ा सा फॉर्मेट हम लोग बनाते थे, याद है आपको? रिसीट, पहले तो डेट, देन वी हैड रिसीट, देन RNO, LF, कैश, बैंक कॉलम, देन अगेन on the credit side, date, payments, VNO, LF, cash column and bank column. So that was all multiple columnar cash book with receipt side, payment side, all the multiple columns. Okay. तो ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है कैश बुक का. इसमें मैंने कौन सा कॉलम बताया है आपको? रिसीट एंड ओनली द बैंक कॉलम. बाकी दो चिन्नू मुन्नू कॉलम मैंने उड़ा दिया. RNO, LF वो सब उड़ा दिया, डेट उड़ा दिया. तो क्या बचता है? रिसीट साइड बैंक कॉलम, पेमेंट साइड बैंक कॉलम, और सिर्फ बैंक कॉलम रखा है, कैश कॉलम नहीं रखा. I have not kept any cash column over here. I kept only bank column over here. Can you see that? So it is a cash book but with only bank column. Okay. तो ये कैश बुक ही है, लेकिन इसमें मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ? सिर्फ बैंक कॉलम. अभी क्यों बैंक कॉलम पे फोकस कर रहा हूँ? You'll understand that. जब भी we maintain a cash book, जब भी हमारा बिजनेस कैश बुक मेंटेन करता है, तो हमारे पास कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं. We have learned two columnar cash book. What are the two columns? One is cash column and one is bank. बराबर. जो आइटम्स कैश में आती थी वो हम लोग कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते थे. जो आइटम्स चेक में आती थी वो हम लोग बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते थे. सिंपल एज दैट. अब जब हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं एज अ बिजनेसमैन, तब एट द सेम टाइम बैंक भी हमारे लिए एक बुक मेंटेन करता है. हमारे रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक मेंटेन करता है. हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक मेंटेन करता है. उस बुक को कहते हैं पासबुक. यू माइट हैव ऑल सीन अ पासबुक. घर पे देखा होगा अपने पेरेंट्स का. वो सेविंग्स अकाउंट का पासबुक होता है. एंड नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर इज करंट अकाउंट का पासबुक. तो क्या अलग होता है? नहीं, बिल्कुल सेम होता है. ओके.
खाली समटाइम्स वी कॉल इट एज अ पासबुक और अ बैंक स्टेटमेंट। कभी कभी आप इसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हो, कभी कभी आप इसको पासबुक बोलते हो। तो जब भी हम लोग अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए वी मेंटेन अ कैश बुक, वी रिकॉर्ड एवरीथिंग इन अ कैश बुक, बैंक also keeps a record of our transaction, and that book is called as passbook or a bank or a bank statement. That is what is called as a bank statement. Clear till this point? अब ध्यान से देखना प्रोसेस कैसे होती है। समझो दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल लेट अस से 2020, अप्रैल 2020, ठीक है। एंड आई रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम ऑन 15th अप्रैल। मेरे को राम से 15 अप्रैल को चेक आया, तो क्या एंट्री करते हो आप? It's a cross check To Ram account. to Ram account. Entry is basically bank to Ram, right? Yeah. So I will write what? To Ram account, let us say 5,000. And this I have received on 15th April. Okay. All videos should be on, off videos will be off. 15th of April को मेरे को ये चेक मिला है 5,000 रुपीज का। अब ध्यान से समझना प्रैक्टिकली ये प्रोसेस कैसे चलती है। मुझे 15 अप्रैल को राम से चेक मिला, मैंने बैंक में अपना कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक टू राम। अब आपको ये चेक पर्सनली जाके बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। हैव यू सीन दिस? योर पेरेंट्स माइट बी डूइंग दिस समटाइम्स। Yeah. आप ये चेक लेके जाते हो बैंक में, फिर यू फिल अप दैट स्लिप, दैट इज कॉल्ड एज अ डिपॉजिट स्लिप, दैट टू थिंग परफोरेशन वाला। You fill up the details of the check, you attach it, you pin it, and एक पर्ची काट के आपको स्मॉल वाला आपको मिलता है, बड़ा वाले का थप थप थप्पा रख के वो डाल देता है डिपॉजिट बॉक्स में। Now tell me one thing, if you entered this transaction in your cash book on 15th April because you deposited the check, you received the check, you put it inside the bank, आपने डिपॉजिट के दिन पे अपने कैश बुक में एंट्री मार दी, क्या वो चेक सेम डे क्लियर हो जाएगा? Would this check? No, it gets cleared on the next day. It takes at least 2 to 3 days, not even next day. It takes 2 to 3 days. Why does this process take 2 to 3 days? It's quite simple. Because आज आपने चेक डिपॉजिट किया, अगर आपने 11 o'clock 12 o'clock के बाद किया तो वो नेक्स्ट डे वो आदमी आएगा आरबीआई वाला जो कलेक्शन डिपार्टमेंट का है, वो चेक कलेक्ट करेगा, फिर ये चेक जाता है क्लियरेंस हाउस में। क्लियरेंस हाउस इज नथिंग बट आरबीआई का ब्रांच ऑफिस, रिजर्व बैंक का ब्रांच ऑफिस, दैट्स अ क्लियरेंस हाउस। उस क्लियरेंस हाउस में मैचिंग करते हैं, मतलब यहाँ से ये चेक डिपॉजिट हुआ है, ये अगर मुझे चेक मिला है तो सामने वाले पार्टी ने दिया होगा ऑब्वियसली, तो सामने वाले पार्टी की साइन चेक होती है, अमाउंट चेक होता है, हैंड राइटिंग सब क्लियर है, कैंसलेशंस तो नहीं है, ये सब वेरिफिकेशन के बाद सामने वाली पार्टी के बैंक को कोऑर्डिनेट किया जाता है। मतलब समझो मुझे ये चेक मिला है लेटर से फ्रॉम साहिल, तो साहिल की बैंक से आरबीआई कांटेक्ट करेगी और कंप्लीटली प्रूफ देगी कि ये चेक बराबर है। अगर वहां से कंसेंट मिला यस ये करेक्ट है, तब जाके साहिल के बैंक में से पैसे डिडक्ट होंगे और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाए। So this process takes place in a span of say 1-2 days, 2-3 days. अभी थोड़ा फास्ट हो गया। तो बोलने का मतलब आज के आज जो चेक रिसीव हुआ है वो आज के आज बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होता, पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कब होगा? 2 या 3 दिन बाद। तो बैंक में भी ये एंट्री आएगी बैंक टू राम वाली, बट आफ्टर 2 to 3 days, आफ्टर 2 to 3 days, ओके। अब 2-3 दिन बाद, ठीक है, 15th अप्रैल की एंट्री बैंक में आई समझो 18th अप्रैल को, तो बैंक का रिसीट, है मेरा रिसीट मतलब बैंक का रिसीट, मेरे को पैसा मिला मतलब बैंक को पैसा मिला। बट बैंक का डेबिट एंड क्रेडिट ऑपोजिट चलता है। बैंक का डेबिट एंड क्रेडिट वर्क ऑपोजिट। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट होता है। ऐसा क्यों होता है, याद है किसी को? Because when we credit it, we pay, the bank receives money. So when bank receives money, it would be debit for it.
No, that's wrong. If we are depositing the money, we are giving the money. That money is going out, and for bank it is coming in. Right. So we credit it and we debit. हाँ, तो मतलब why are we debiting bank over here? Because bank is the receiver. Okay, बैंक अपना debtor है, हमने पैसा डाला बैंक में, तो सामने बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है. बैंक विल थिंक फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि पैसा डाला मतलब वी आर द क्रेडिटर. पैसा डाला मतलब अपने को उसको पैसा देना बाकी है. अपना ये कस्टमर है, इसने अपने को पैसा दिया, अपने को इसको पैसा देना बाकी है. तो ये जो कैश बुक है ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और पासबुक जो है ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. ओके, तो व्हेनेवर वी पुट मनी इनटू द बैंक, वी आर थिंकिंग ऑफ बैंक एज अ डेटर. बैंक विल थिंक ऑफ अस लाइक अ क्रेडिटर. Whereas whenever we take out money from the bank, whenever we withdraw money from the bank or we pay anything, we consider bank as the creditor, क्योंकि credit the giver, क्योंकि हमारा debtor basically कम हो रहा है, creditor नहीं है वो, debtor कम हो रहा है. जितना पैसा बैंक में डाला था उतना लेना बाकी है, जितना निकाला उतना अभी कम हो गया. मैंने बैंक में 50,000 डाला था तो बैंक मेरा डेटर है, उसमें से 10,000 निकाल लिया, उतने से क्रेडिट कर दूंगा, उतने से वो डेटर सेटल हो गया. बैंक क्या सोचेगा, अगर मैंने उसमें पैसा डाला तो आई एम इज क्रेडिटर फॉर 50,000. फिर अगर मैंने उसमें से पैसा निकाला तो वो क्या सोचेगा कि भैया हाँ ये क्रेडिटर सेटल हो गया 10,000 से, अभी मुझे इसको 40,000 देना पड़ेगा. तो इन अ जिस्ट, इन अ शॉर्ट वे, इफ यू वांट टू रिमेम्बर, हमेशा क्या याद रखने का कि हमारे लिए बैंक इज लाइक अ डेटर, बट बैंक के लिए वी आर लाइक अ क्रेडिटर. For us, bank is like a debtor. It's an asset. But for bank, we are a creditor. We are a liability. तो accounting point of view में याद रखना, whenever we debit anything in the cash book, मतलब हमने बैंक में पैसा डाला, तो bank will credit our account in the past book. Bank will credit our account in the past. क्या बोला सुना? तो जब भी हम बैंक में कुछ डालते हैं, डेबिट करते हैं, तब हम कैश बुक में वो डेबिट करेंगे. क्यों? क्योंकि बैंक इज द रिसीवर, वो हमारा डेटर हो गया, उससे पैसा लेना बाकी है. साइमल्टेनियसली बैंक क्या करेगा हमारे अकाउंट को? एट द सेम टाइम क्रेडिट अवर, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये उधार है, ये मुझे उसको देना बाकी है. मैं इधर सिंप्लिसिटी के लिए बाय कैश लिख रहा हूं. मतलब बैंक क्या सोच रहा है, उसके बैंक के बिजनेस में कैश आया ना, वाया चेक कैश आया, एंड हु इज द गिवर? मैं, आई एम द गिवर, मुझे पैसा देना बाकी है. ओके, तो बैंक ऐसे सोचेगा. तो ये बाय कैश बेसिकली क्रूड एंट्री है, वो इधर डिटेल दिखाता है. अगर आप पासबुक उठा के देखोगे तो वो डिटेल दिखाता है ये कौन से अकाउंट से आया है. इधर अकाउंट नंबर होता है, नेम ऑफ बिजनेस होता है, और भी दो ये जीएसटी नंबर है तो वो भी दिख जाता है. ये डिटेल आपको दिख जाती है, ये डिटेल आपको पासबुक में मिल जाती है. बेसिकली बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, उसको पैसा मिला. कितना पैसा मिला? 5,000. किसने दिया? मैंने दिया. तो बैंक सोचेगा कि मुझे देना बाकी है, मुझे इस कस्टमर को 5,000 देना बाकी है. ये कंसेप्ट समझा आपको? तो जब भी हम लोग बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट करेगा. ये बात समझ आई? अब मुझे एक और चेक मिला साहिल से 7,000 रुपीज का ऑन 20th of April. 20 अप्रैल को मेरे को साहिल से चेक मिला. तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक टू साहिल. 20th अप्रैल को चेक आया, मैंने ताबड़तोड़ अपने क्लर्क को बोला कि जा बैंक में डिपॉजिट करके आ फटाफट. वो गया, उसने टप टप स्टैंप मारा, डिपॉजिट स्लिप लेके आ गया. मैंने एंट्री कर दी बैंक टू साहिल 7,000. कब किया? 20th अप्रैल को किया. अब बीच में हॉलीडे आ गए, कभी कभी बैंक्स इन अ रो 4-5 दिन बंद हो जाते हैं, तो 4-5 दिन तक बैंक बंद था. तो ये चेक प्रोसेस होने में 7-8 दिन लग गए, और 28 अप्रैल को पासबुक में एंट्री दिखी, बाय कैश या जो भी डिटेल है वगैरह वगैरह चेक की, 7,000. क्यों क्रेडिट पे दिखी? बात समझ में आ रही है? Because it gave us a cash of that much amount. Because Sahil has given us cash. वो अपने को नहीं मिला, बैंक में गया. हमारे लिए वो चेक है, इसके लिए हमने बैंक कॉलम में देखा. बैंक के लिए वो कैश आ रहा है, कैश को ओवर अकाउंट.
तो वो अंदर का मसाला इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो बाय कैश लिखो या डिटेल ऑफ बिजनेस लिखो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन से साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, कौन से साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, डेबिट की क्रेडिट। तो हमें जब पैसा मिलेगा वी विल रिकॉर्ड इट ऑन डेबिट साइड, receipt is our debit side, and bank will record the same but on credit side. Bank will record the same but on credit side. Hope this part is clear. अब रिसीट और पेमेंट में, वन सेकेंड, रिसीट और पेमेंट में कोई चीज अलग नहीं है। हमारा भी रिसीट है, हमें भी पैसे मिल रहे हैं, बैंक को भी पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि बैंक कोई अलग नहीं है, वो अपना ही अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। पासबुक क्या है? अपना ही अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। यू कैन थिंक लाइक दिस, लेजर में हम लोग करते थे, काले के बुक में गोरे का अकाउंट, गोरे के बुक में काले का अकाउंट। तो काले ने गोरे को पैसा दिया, बराबर, तो काले हैज पेड द मनी टू गोरे। तो काले के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, हमने बैंक में पैसा डाला, समझो गोरे अपना बैंक है तो गोरे बैंक में पैसा डाला, और गोरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, मेरे को काले ने पैसा दिया, तो पैसा काले ही गोरे को दे रहा है, पैसा बैंक में ही आ रहा है। ऐसा मत समझना कि हम रिसीव कर रहे हैं तो बैंक पे कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। हम रिसीव कर रहे हैं तो बैंक भी रिसीव, मतलब हमने काले के अकाउंट, वी आर सपोज काले, हमने गोरे के अकाउंट में पैसा डाला तो गोरे को भी पैसा मिल ही रहा है। इट्स नॉट लाइक गोरे अपने को पैसा दे रहा है, गोरे को भी पैसा मिल ही रहा है, खाली पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गोरे हमारा डेटर है और गोरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काले, हम उसके क्रेडिटर। बात समझ आई? तो हम एंट्री मारेंगे गोरे टू कैश, गोरे क्या एंट्री मारेगा, कैश टू काले। हाँ, पे समझ गया मैं। काले एंड गोरे का सम याद है? Yes. Suppose we are the two parties, Vishal and Vidushi. I give you cash. So what entry will I pass? Vidushi to cash. बराबर? मैंने तुमको पैसा दिया तो मैंने तुम्हारा अकाउंट डेबिट किया, तुम क्या एंट्री करोगी? कैश Cash टू to विशाल। Vishal. तो मेरा अकाउंट क्रेडिट करोगी, लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो तुमको ही मिला है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, हमारे बुक में ये बैंक का अकाउंट है और ये बैंक के बुक में हमारा अकाउंट है पास। जब भी पैसा आ रहा है बैंक इज द रिसीवर, खाली पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हम लोग डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे। वैसे ही जब भी पे करोगे, वेन एवर यू पे एनीथिंग, लेट अस से आई इशूड अ चेक ऑन 16th April। 16th April को मैंने कोई चेक इश्यू किया, लेट अस से टू मोक्ष, मोक्ष को मैंने 8,000 का चेक इश्यू किया, व्हाट एंट्री शुड आई पास? Mox to bank. मोक्ष टू बैंक, To bank. मोक्ष टू बैंक। अपना कैश बुक में ये एंट्री करते हो, मोक्ष इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर, बैंक को क्रेडिट करो, बैंक में से पैसा कम हो रहा है तो मोक्ष टू बैंक। तो इधर क्या आएगा कैश बुक में, बाय मोक्ष 8,000। सेम एंट्री बैंक भी पास करेगा, लेकिन कौन से साइड पे? डेबिट साइड, Debit side. Debit side. डेबिट साइड। वाई डेबिट साइड? मैंने बैंक से काटा ना पैसा, निकाला पैसा, तो बैंक क्या देखेगा, हाँ भैया ये ओनर इतना पैसा लेके जा रहा है, ये ओनर हमारे यहाँ से इतना पैसे लेके जा रहा है, इसको डेबिट दे दो। गॉट इट? तो बैंक भी वही एंट्री करेगा बट साइड उल्टी हो जाएगी, मैं क्रेडिट में कर रहा हूँ, बैंक डेबिट में करेगा, मैं डेबिट में कर रहा हूँ, बैंक क्रेडिट में करेगा। क्या सेम डे होगी ये एंट्री? नहीं. Why? Why? 2-3 दिन लगता है ना। 2-3 दिन तो नॉर्मली लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आज 16th April है, ठीक है, आज मैंने मोक्ष को चेक दे दिया 16th April को। मोक्ष गया हुआ था गोवा हॉलीडे मनाने, मोक्ष आया ही बॉम्बे में 21st April को। उसने देखा कि अरे भाई ये चेक तो आ चुका है, फटाफट बैंक में डालो, क्लर्क को बोलेगा जा बैंक में डाला, डिपॉजिट किया, उसके 2-3 दिन बाद क्लियर हुआ। तो 24th April को जाके ये चेक क्लियर हुआ, बैंक का एंट्री मारेगा, समझो टू कैश, और यहाँ पे डिटेल्स दिखा देगा चेक वगैरह की, जो भी डिटेल्स है, कितना आएगा तो 8,000। तो बैंक में भी एंट्री आई, लेकिन कौन से दिन पे आई? 24th April। तो जरूरी नहीं है कि हर एक चेक जो डिपॉजिट हो रहा है वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाए, या हर एक चेक जो आप दे रहे हो, इसको बोलते हैं चेक इश्यू करना, वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाए, नॉट नेसेसरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
It may take more than 3, 4, 5, 7, 8 days, 10 days. तो सर ऐसे कितने दिन चल सकता है? 3 महीने, 3 months. Okay, 3 months is the validity of any check. After 3 months, it becomes a stale check, a post-dated stale check. Okay, anti-dated stale check हो जाता है. 3 महीने की validity होती है, 3 months. After 3 months, the check is useless. Okay, तो अप्रैल का चेक है तो मई, जून, जुलाई 3 महीने तक वैलिड गिना जाएगा. जुलाई के बाद बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है. ठीक है. नाउ Sir, one minute, let me explain the concept. So यहाँ पर बेसिकली क्या देखने मिलता है कि अपने को, हम लोग कोई एंट्री कर रहे हैं डेबिट में, बैंक भी वही एंट्री कर रहा है क्रेडिट में, और हम लोग कोई क्रेडिट में कर रहे हैं तो बैंक भी डेबिट में वो एंट्री कर रहा है. तो अभी अप्रैल का महीना खत्म हुआ तो हम लोग बैलेंस करते हैं कैश बुक और पासबुक को. याद है, वी यूज्ड टू बैलेंस द कैश बुक एंड पासबुक. So what is the balance now? Either 5 plus 7, 12, 12 minus 8, 4,000. Can I write here on 30th of April by balance CD? By balance CD. बराबर? On 30th of April, I'll write here by balance CD 4,000. Is that right? And यही पासबुक का बैलेंस है 12,000 minus 8,000, ये होता है 4,000. This will become to balance CD 4,000. Is that right? So what can we conclude? Balance as per both the books is same or different? Opposite. But the Same. amount is Amount same. is the same. Amount is the same, right? But the nature is opposite. और वो opposite ही होगा. याद है काले गोरे में हमारा डेबिट बैलेंस, उसके बुक में क्रेडिट बैलेंस. हम, हमारे लिए बैंक डेटर है, उसके लिए हम क्रेडिटर है. तो हमें उससे पैसा लेना है, बैंक को अपने को पैसा देना है, इसलिए हमारे बुक में डेबिट बैलेंस और बैंक के बुक में क्रेडिट बैलेंस. Did you get this? So बोलने का मतलब दोनों बुक, कैश बुक और पासबुक, दोनों बुक का बैलेंस महीने के एंड में सेम होना चाहिए. यस और नो? क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि जो एंट्रीज हमने डेबिट में पास किया, बैंक वही एंट्री क्रेडिट में करता है. जो एंट्रीज हमने क्रेडिट ऑफ कैश बुक में पास किया, बैंक वही एंट्री डेबिट में कर रहा है. तो अमाउंट सेम होना चाहिए, लेकिन नेचर ऑपोजिट होगा. हमारे लिए डेबिट बैलेंस, बैंक के लिए क्रेडिट बैलेंस. हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस, बैंक के लिए डेबिट बैलेंस. तो आज आप घर पे उठा के जब पासबुक चेक करना मॉम डैड की, जो आइटम्स आपको पासबुक के क्रेडिट में दिख रहे हैं, क्रेडिट में, सोच के बताना, क्रेडिट में वो पैसे आए हैं कि गए? आए. ये दिख रहा है, ये आए. जो आपको क्रेडिट में दिख रहा है पासबुक में, वो पैसे आए हैं. और जो डेबिट में दिख रहा है, वो पैसे गए. तो योर पासबुक शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? Credit balance. Credit side should be greater than debit side. It should always reflect credit balance. Should always reflect credit balance. Is that clear? बात समझ आई? डेबिट बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो करंट अकाउंट में ही होता है. ओके, सेविंग अकाउंट में तो डेबिट बैलेंस बैंक होने ही नहीं देगा. 1,000, 2,000, 10,000 रुपए बैलेंस रखना है, नहीं तो फिर स्टॉप कर देता है, आपका अकाउंट में ब्लॉक कर देता है. तो पासबुक में एवरी टाइम यू विल फाइंड क्रेडिट बैलेंस. नाउ व्हाई डू वी मेक बीआरएस? सर ने बीआरएस तो बताया ही नहीं, ये तो हमें कैश बुक और पासबुक में खिला रहे हैं. अभी बीआरएस क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ओके, एंड व्हाई डू वी मेक दिस? देखो, यहां तक सपोज दोनों बुक में सब एंट्रीज थी. अब मेरे को कशिश से 29th April को एक चेक मिला. I got a check from Kashish on 29th of April. Let us say of 6,000 rupees. What entry will I pass on 29th April? To Kashish. I got a check. मैं बड़ा ही सिंसियर हूँ, मैंने आज ही डिपॉजिट कर लिया बैंक में, मैंने एंट्री कर ली सपोज 6,000. बैंक टू कशिश इट इज 6,000. ठीक है. नाउ ये चेक डिपॉजिट तो कर लिया, लेकिन क्लियर होने में 3-4 दिन लग गए, हॉलीडेज आ गए. ये चेक गॉट क्लियर्ड by the bank on 2nd May. So tell me, will this entry appear in the passbook in the month of April? No. क्यों? It's got cleared in the next. Got cleared in the next month. तो कब आएगी ये एंट्री? 2nd. 2nd May को आएगी. But as on 31st April, before that वो एंट्री आई है?
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि चेक को क्लियर होने में 2-3 दिन लगे और बीच में मंथ एंड आ गया। क्या ये लफड़ा ऑनलाइन पेमेंट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में विद इन 5 मिनट्स आज आपने इधर रिकॉर्ड किया, पैसा आया और वहां पे से निकल गया, या आज आपने पैसा दिया वहां पे 5 मिनट्स में क्रेडिट हो गया। तो कैश बुक पासबुक दोनों में फटाफट 5-10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटे में रिफ्लेक्ट हो जाता है। यस और नो? बट ये लफड़ा किसमें होता है? चेक्स में होता है। इसीलिए जितने ऑनलाइन पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें ये लफड़ा कभी आएगा ही नहीं। ताबड़तोड़ दोनों बुक में एंट्री आ जाती है। ठीक है, अगर दोनों बुक में एंट्री आ जाती है, दोनों बुक का बैलेंस सेम रहता है, तो बीआरएस बनाने की जरूरत ही नहीं है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है ही नहीं। बीआरएस क्यों बनता है अब पता चलेगा, इसलिए बनता है। यहां पे क्या हुआ, मेरे को एक चेक कशिश से आया, मैंने 29 अप्रैल को रिकॉर्ड किया, ये एंट्री बैंक में दिख ही नहीं रही है। मंथ एंड होता है तो आप बैलेंस करते हो, व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक? What is the balance as per cash book? 10,000. 10,000. 10,000. And what is the balance as per passbook? 4,000. 4,000. This is 1 second, I think. Green stop. Is it visible? Sir, stop. One. अटकी गई। अटकी गई। 1 second. Yeah. Is it visible now? Yes, sir. So, balance as per passbook will still be 4,000. Yes or no? Is the balance same? No. No, the balance is different. So, in order to know this difference, मेरे को क्या है, मेरे पास कैश बुक है, मेरे पास पासबुक है, मैं देखूंगा कैश बुक का बैलेंस 10,000 है, पासबुक का भी 10 होना चाहिए, लेकिन पासबुक में तो दिख रहा है 4,000। अब ये यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, ऐसा क्यों? Why is this difference? So in order to list down the reasons of difference, we make BRS. So what is BRS? BRS is the list. It is just a list. Again, not a part of journal, not a part of ledger account, not a part of final accounts, not a part of trial balance, not a part of regular accounting process. It is simply a list. जैसे घर पे मम्मी डैडी का झगड़ा हो गया, तो मम्मी को डैडी से क्या प्रॉब्लम है, डैडी को मम्मी से क्या प्रॉब्लम है, उसकी लिस्ट, आप एक लिस्ट रेडी कर दो। वैसे यहाँ पे बैलेंस अलग हो गया, कैश बुक का बैलेंस अलग है, पासबुक का बैलेंस अलग है, ये अलग क्यों है, इसकी लिस्ट रेडी कर रहे हो। इस लिस्ट को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर? तो इन अ सिंपल वे अगर मैं आपको एक बीआरएस बताऊं तो कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। आई विल राइट हियर बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, इट इज 10,000 और बैंक बैलेंस as per passbook is 4,000। तो ये अभी 10 से 4 पे जाना है मुझे, तो मैं प्लस करूं कि माइनस करूं? माइनस 6 लेस कर दूंगा, बराबर। 10 minus 6 is 4 and what will I write here? This is nothing but, ये क्यों हुआ है, what is this 6,000? ये मेरे को बाद में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि कशिश से जो चेक आया था, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया है लेकिन पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इधर लिख दूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। मतलब मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है या फिर क्लियर नहीं हुआ है। आई कैन मेंशन दैट नॉट कलेक्टेड या नॉट क्लियर, इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक छोटा सा स्टेटमेंट है विथ वन सिंगल रीजन ऑफ डिफरेंस। ऐसे ही आपको प्रॉब्लम में 6 या 7 रीजन दिए जाते हैं, 6 या 7 रीजन, और आपको डिसाइड करना है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस। क्यों आपको डिसाइड करना है प्लस माइनस? क्योंकि यहां पर तो बड़ा ही सिंपल था, ये 10 था ये 4 था तो मैंने 6,000 माइनस कर दिया, राइट। ये 10 था ये 4 था और मैंने ये 6,000 यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया। बट सम में
ये एक ही बैलेंस देंगे आपको, ऊपर वाला ही बैलेंस दिया होगा, नीचे वाला दिया ही नहीं होगा। ओके, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट प्रॉब्लम में ऐसा करते हैं। प्रॉब्लम्स में दे विल गिव यू जस्ट वन बैलेंस, दे वोंट गिव यू द अदर बैलेंस। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा आइटम्स प्लस होगा, कौन सा आइटम्स माइनस होगा। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल सेंस में बता दिया, बीआरएस कैसे बनता है, ऐसे बनता है। आप क्या करते हो एज अ बिजनेसमैन, व्हाट यू विल डू, you look at cash book, you look at passbook, you look at cash book at the month of April and you will look at passbook at the end of April. आप देखोगे कैश बुक का बैलेंस कितना है 10, पासबुक का बैलेंस कितना है 4, तो दोनों में चेक करोगे भैया क्या अलग है, तो अपने को तो ताबड़तोड़ मिल गया ये कशिश वाला चेक। कशिश ने चेक दिया था, डिपॉजिट किया है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चलो रीजन ऑफ डिफरेंस मिल गया, बैलेंस सेट टैली हो रहा है अभी 10 minus 6 4, yes it is tally, that was the reason of difference, और इसको बोला जाता है BRS. This is what is called as a bank reconciliation statement. Okay, so basically what is a BRS, what is a BRS, देखो सुनो राम कहानी। normally every transaction which we entered on the debit side in cash book is also recorded by the bank on the credit side of passbook, right? And every transaction which we enter on the credit side of passbook is also entered by the bank on the debit side. हम जो क्रेडिट में कैश बुक के करते हैं वो बैंक पासबुक के डेबिट में करता है, हम जो कैश बुक के डेबिट में रखते हैं वो बैंक पासबुक के क्रेडिट में करता है। होता है कि नहीं होता है? तो नॉर्मली बैलेंस एज पर बोथ द बुक्स, क्लोजिंग बैलेंस एज पर बोथ द बुक्स शुड बी सेम और डिफरेंट, दे शुड बी सेम, राइट? Sometimes this balance is not same, sometimes this balance changes. Why it changes, आपको एक रीजन सामने दिख गया, इस महीने में चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन नेक्स्ट महीने में क्लियर हुआ है। ऐसे मुझे और कोई रीजन बता सकते हो आप? Dishonor of check. डिसऑनर ऑफ चेक, वेरी गुड रीजन। मैंने कशिश का चेक बैंक में डाला 29 अप्रैल को, मैंने तो एंट्री कर दी यहीं पे, ये रही टू कशिश, मैंने डिपॉजिट कर लिया, बैंक ने रिजेक्ट कर लिया चेक, ये साइन मैच ही नहीं हो रहा है, या चेक में कैंसलेशन है, या चेक फटा हुआ है, तो बाउंस हो गया चेक। तो विल द बैंक पास एनी एंट्री इन द पासबुक, विल द बैंक क्लियर दिस चेक? नो, बट आई विल नॉट कम टू नो ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आई विल कम टू नो दैट इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि अप्रैल तक तो मैं सोच रहा हूं अभी 2-3 दिन लगेंगे क्लियर होने में। आई एम इनटू दैट assumption, right? So as on April, entry is there only in cash book but not in passbook, so balance would change. और क्या रीजन हो सकता है? डिसऑनर हो गया, So for मैंने yeah if there is like bank charges or the telephone expenses which bank pay, and for exactly example it was paid on the last date of last date, so generally paid on that day, generally paid on that we are notified about the same and we come to know next month, so it will be recorded. exactly, that is possible, Not absolutely right. क्या बोला वीर ने कि बैंक को हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, बैंक चार्जेस को डिडक्ट हो रहे हैं, तो वो तो करते ही रहता है बैंक, तो बैंक रिकॉर्ड कर देगा वो पासबुक में। कौन से दिन पे कर देगा? लास्ट डे ऑफ द मंथ, 30th अप्रैल को। समझो 30th ऑफ अप्रैल को बैंक ने यहाँ पे डाल दिया टू बैंक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी बिल 500, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला अप्रैल में, हमें तो मई में पता चला पासबुक देखने के बाद, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। अभी तो बड़ा ही फास्ट हो गया, मोबाइल पे पता चल जाता है, इंटीमेशन आ जाता है तो आप रिकॉर्ड कर लेते हो। लेकिन ये अभी थोड़ा पुराना सिस्टम है जहाँ पे आपको इंटीमेशन नहीं आया या आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक में बैंक ने कर लिया है, लेकिन कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो बैलेंस विल चेंज ना, 500 से बैलेंस अलग हो जाएगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। या फिर मैंने मंथ एंड पे किसी को चेक दिया है, जैसे चेक आया था वैसे चेक दिया है, मैंने समझो कीर्तना को चेक दिया है 6000 का, तो मैं इधर लिख लूंगा बाय कीर्तना, लेट अस से 16,000 का, आई हैव गिवन अ चेक ऑफ कीर्तना ऑफ 16,000 रुपीस। ओके, बट दिस चेक गॉट क्लियर्ड इन द नेक्स्ट मंथ, दिस चेक गॉट क्लियर्ड इन द नेक्स्ट मंथ। मैंने चेक दिया है 30 अप्रैल को, पासबुक में कब आएगी एंट्री?
May, The month of After May. a few. After a few days. So during April, is the balance same or different? It's different. will be different. It will be different. Definitely different. So हम लोग ये बैलेंस डिफरेंट क्यों है, इसका रीजन की लिस्ट तैयार करते हैं और बाद में मैच करते हैं कि क्या ये बैलेंस टैली हो रहा है कैश बुक का पासबुक से. उस लिस्ट ऑफ रीजन को कहते हैं बीआरएस. उस लिस्ट ऑफ रीजन को कहते हैं बीआरएस. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? So what is a bank reco statement? It is a statement. सुनना ध्यान से. It is a statement prepared by the businessman. कौन बनाएगा ये statement? Businessman. The Businessman. trader. क्या बैंक बनाएगा? नहीं. बैंक आपका नौकर थोड़ी है. आपको अपनी तसल्ली के लिए बनाना है. बैंक तो आपको क्या बना के देगा? Passbook का पासबुक का एंट्रीज दे देगा. Sir, आप as a businessman, okay, you as a businessman will make a BRS, bank reconciliation statement. For what reason? To know the reason of difference, to list down the reasons of difference between balance as per cash book and balance as per passbook. Is this clear? BRS is made by the businessman to list down the reasons of difference between balance as per cash book and balance as per passbook. ये बनाने से क्या होता है, क्या फायदा होता है? फायदे में पहली चीज आपको पता चल जाएगा कौन सा चेक आया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, कौन सा चेक आपने दिया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये तो पता चल जाएगा आपको. इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस. इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग के वजह से आगे पीछे होगा. ओके, आपका बैंक चार्जेस कट गया है, आपको रिकॉर्ड करना बाकी है. आपने चेक डिपॉजिट किया, बैंक को रिकॉर्ड करना बाकी है. आपने चेक इश्यू कर दिया, बैंक को रिकॉर्ड करना बाकी. ये पता चल जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या पता चलता है बीआरएस से? यू कम टू नो whether there are any errors, whether there are any mistakes in your cash book. You can come to know that. How? Simple example. ऐसा सीन है, ये दोनों एंट्री दोनों बुक में है, राम साहिल. ठीक है, राम और साहिल की दोनों एंट्रीज दोनों बुक में है, मोक्ष वाली भी एंट्री बुक में है. मैंने चेक किया, मुझे पता चला कि ये बैलेंस सेम नहीं आ रहा है. क्यों सेम नहीं आ रहा है? मैंने गड़बड़ कर दी है. साहिल में लिख दिया है 70,000. एक्चुअली चेक कितने का था साहिल वाला? 7,000. 7,000. Now still the balance would be different. But when I check, I'll come to know कि ये कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये तो मेरी गड़बड़ हो गई थी. क्या गड़बड़ हो गई थी? एक्चुअली चेक था 7 का, मैंने गलती से डाल दिया 70,000. तो I'll make a correction. आप रेक्टिफिकेशन करते थे, याद है? ये चेक रिसीव फ्रॉम साहिल 7 का 70 हो गया, तो करेक्ट एंट्री बैंक टू साहिल 7, रॉन्ग एंट्री बैंक टू साहिल 70, फिर साहिल टू बैंक और फिर अगेन साहिल टू बैंक 63,000. तो आप उसकी रेक्टिफाइड एंट्री करोगे. ओके, तो देन यू डू द रेक्टिफिकेशन. सो ये हेल्प करता है आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में कि कैश बुक में कहीं अमाउंट की मिस्टेक हो गई है, क्या अकाउंट की मिस्टेक हो गई है, ये भी आपको पता चल जाएगा व्हाइल कंपेयरिंग इट विद पासबुक. आर यू गेटिंग इट? थर्ड इंपॉर्टेंट यूज, फ्रॉड्स. ये पहले होता था, अभी तो फ्रॉड होने का चांस बहुत कम है. फ्रॉड्स भी आप डिटेक्ट कर सकते हो. कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? सिंपल सा एग्जांपल लो. आपने अपने कैशियर को बोला कि आज अपने बिजनेस में 50,000 रुपीज कैश आ गया, 50,000 रुपए जाके बैंक में डिपॉजिट करके आ. जाके बैंक में डिपॉजिट करके आ. अब आप क्या एंट्री करोगे जब आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हो? बैंक टू कैश. बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, राइट? हाउ मच? 50,000. यस और नो? अभी वो कैशियर ने क्या किया? वो कैशियर ने एंट्री मार दी आपके सामने, देखिए सेठ जी मैं एंट्री मार के जा रहा हूं, और कैश लेके भाग गया. और कैश लेके भाग गया. भाग गया मतलब है बिजनेस में ही, लेकिन डाला ही नहीं उसने बैंक में. अगर उसने बैंक में डाला नहीं है तो क्या पासबुक में रिफ्लेक्ट होगा वो? नहीं. तो आप जैसे मंथ एंड पे पासबुक आएगी आप कंपेयर करोगे कि भैया हाँ ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये कैश की एंट्री तो गुल है, तो पकड़ोगे आप गला किसका? कैशियर का. सो दिस इज हाउ अर्लियर फ्रॉड्स एक्चुअली यूज्ड टू हैपन इन दिस सिचुएशन. ओके, पीपल इन अ बिग बिजनेस, आप हर साल थोड़ा बहुत कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, हर दिन, सॉरी हर साल क्या, हर दिन आप थोड़ा बहुत कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो.
तो एंट्री दिखाई देगी, लेकिन साला कैश डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में। अगर डिपॉजिट किया नहीं तो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो बैलेंस अलग हो जाएगा मंथ एंड पे। तो आप अगर देखोगे, चेक करोगे, तो मालूम पड़ेगा ना बैलेंस अलग क्यों है। अलग इसलिए है क्योंकि ये एंट्री है, वो एंट्री है ही नहीं, मतलब कैश गुल है बुक्स में से, मतलब पकड़ो हु इज द कल्प्रिट नाउ। सो इट यूज्ड टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स आल्सो। सो 3 इंपॉर्टेंट रीजन। पहली चीज तो इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, कौन से चेक्स क्लियर होने बाकी हैं, कौन सी एंट्रीज दोनों बुक में आई है कि नहीं आई है। दूसरा रीजन, मिस्टेक्स पता चल जाती है अगर रिकॉर्डिंग में कुछ मिस्टेक की है तो। तीसरा रीजन, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। अब ऑनलाइन बैंकिंग के वजह से, इंटरनेट बैंकिंग के वजह से ये तीनों चीजें गायब हो गई। ऑनलाइन बैंकिंग के वजह से, इंटरनेट बैंकिंग की वजह से ये तीनों चीजें गायब हो गई। क्यों? पहली, ऑनलाइन है तो जिस दिन आप एंटर करोगे बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या बैंक करेगा आपको एसएमएस आ जाता है, तो फटाक से सेम डे यू कैन रिकॉर्ड। तो टाइमिंग डिफरेंस चला गया। मिस्टेक्स, टैली पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में करते हो तो मिस्टेक होने की चांस ही नहीं है ये सब अमाउंट्स वगैरह की, है कि नहीं। दो डबल एंट्री, सेम अमाउंट, करेक्ट अमाउंट होना चाहिए। बहुत रेयरली ओवरसाइट से ये हो सकता है कि दोनों में रॉन्ग अमाउंट हो और आपने की हो। और तीसरा होता है फ्रॉड्स मतलब कैश में गया है कि नहीं। आपने नौकर को बोला आज 5,000 डाल के आ, अगर उसने नहीं डाला आपको एसएमएस नहीं आएगा। आप क्योंकि जैसे कैश डिपॉजिट करते हो ना, अगर आपको पता होगा, इमीडिएटली यू गेट अ टेक्स्ट मैसेज, इमीडिएटली। उसको 2-3 दिन नहीं लगते। whenever there is a cash deposit, the text message is received ताबड़तोड़। सो ये वाली भी चीजें अभी बहुत कम। ओके, those who are doing it manually they still suffer। कंप्यूटराइज की वजह से ये बहुत कम हो गई है। अभी अल्टीमेटली अपने को क्या करना है प्रॉब्लम में, अपने को बीआरएस बनाने का। चलो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट्स? क्या था डाउट्स? Sir, I have Sir, a in BRS, whenever there is a, like if it is on 29th and we get it cleared on 2nd May, so the amount will be deducted on 2nd May or on 29th From the passbook, from our bank account. yeah, that will be on 2nd May only, the day on which bank records the transaction. ये तो हम कर रहे हैं, we are recording on 29th. Actual amount on the bank will deducted on 2nd May, or it will be entered in the bank on the 2nd, the day on which passbook bank records that. Yes. And whenever I forgot 1 minute. Varun. So I forgot my doubt. Okay, Varun. sir, my doubt was what if 2 entries are made matlab, in such a way that they cancel each other out? Yeah, so that's why you need to check the BRS properly. Though the balance is same, this is a very rare phenomenon, very rare phenomenon to have a compensating error. दो अमाउंट्स है, दोनों सेम है, जिसकी वजह से आपका अमाउंट, ये तो मैं आपको ऐसे इधर राउंड फिगर बता रहा हूँ। बैंक में आप एक्चुअली देखोगे तो 0.2 डेसिमल तक के फिगर्स होते हैं। चेक्स वगैरह जो भी आपको मिलते हैं, आप इश्यू करते हो, यूनिट्स तक के ऑड फिगर्स होते हैं बिजनेस, यूनिट्स तक। Sorry, am I audible now? Yes, sir. Okay.
सो वेयर वी कॉम्पेंसेटिंग एरर, ऐसा 2 मिस्टेक साथ में होने का चांसेस नेग्लिजिबल. ओके, 2 मिस्टेक साथ में होने का चांसेस वेरी लेस, कि भैया 2 मिस्टेक साथ में हो गई है और रेक्टिफाई कर रही है एक दूसरे को. तो इसीलिए ध्यान से देखने का, दोनों रीजन ऑफ डिफरेंस है, दोनों रीजन ऑफ डिफरेंस है, चेक करने का प्रॉपर. ओके, बोलो. I had a doubt that Yeah. in the passbook the account is as account, right? This Yes. 8 by cash, it should be, matlab the entire entry is cash to Priyal, right? Right, cash to Priya. Perfect. In the point of view of bank, So as point of view would be Ram. हाँ, our point of view it is Ram. Thank you, Ram. है ना, वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से. वी आर नॉट गेटिंग कैश, वी गॉट अ चेक, वी पुट इट इनसाइड द बैंक. बैंक का भी खुद का बिजनेस है ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा. उसको कैश मिल रहा है उसके किटी में, उसके एसेट में कैश आ रहा है, लायबिलिटी में क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रियल. सो कैश इज एन एसेट, प्रियल इज द क्रेडिटर, इसको पैसा देना बाकी. ओके, नाउ या Sir, there are the date for both the entries is different in the cash account and in the passbook. So, won't बैंक there be अकाउंट any एंड पास. yeah, won't there be any confusion? Like if there are too many entries, how will we come to know for which entry after 2-3 days it happens? अमाउंट शुड बी देयर ना. ये 5334, तो वो 5334, 6572, तो 6572 का अमाउंट on after 2-3 days, 2-3 days, 6-7 days. You can easily verify. Right? Any other doubts? Yes. So Bolo. can there be a delay in receipt or payment? Can there be a delay in receipt if we have not insufficient balance in our account? तो बाउंस हो जाएगा ना. insufficient balance means it is bounced. अभी तो किया डिसऑनर. रिसीव करने में भी. हाँ, रिसीव करने पे मतलब हमको चेक मिला है वो ना. हाँ, तो सामने वाले पार्टी के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो स्टॉप हो जाएगी ना पेमेंट. And if the person who's giving us the check has sufficient balance, but while we receiving it have insufficient amount, so there wouldn't be anything that will be happening, right? Person has sufficient balance when he is giving. Yeah, but we have insufficient balance. अरे तुमको तो रिसीव करना है, तुमको क्या तकलीफ है. लेकिन वो बैंक ऐसे पे ऑफ करता है ना चार्जेस और वो सब, तो अगर नहीं होगा तो इसलिए. अरे यार, रिसीव करना है ना, तो चेक क्लियर करके काट लेगा चार्जेस तुम्हारा. ओके. पे करना है तो वो अटक जाएगा, वो नहीं हो पाएगा तुम्हारा. इश्यू वाला पार्ट अटक जाएगा, रिसीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आते हैं अपने को प्रॉब्लम कैसे करना है सॉल्व. ओके, अभी ये प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ही था, मैंने जो आपको बताया 10 - 64. ओके, 10 - 64. ये माइनस क्यों किया और माइनस प्लस कैसे ढूंढने का. मेन तो माइनस प्लस है. क्यों माइनस प्लस इंपॉर्टेंट है? एज आई टोल्ड यू इन द प्रॉब्लम, दे विल गिव यू ओनली वन बुक का बैलेंस. या तो कैश बुक का बैलेंस देंगे और बोलेंगे पासबुक का बैलेंस ढूंढिए, या पासबुक का देंगे और बोलेंगे कैश बुक का बैलेंस. ठीक है. Now, suppose I tell you that bank balance as per cash book is 50,000. Cash book का bank balance है 50,000. Okay. Now stay with me on the course. Okay. And I give you an information, additional information. क्या information दूंगा कि there was a check in the month of April. This is as on 30th of April. 30th of April को बैंक में 50,000 का बैलेंस है. Okay. Now on 15th April, during the month of April, अपने को एक चेक मिला था 5,000 रुपीज का. चेक मिला था 5,000 रुपीज का. ओके, वो हमने डिपॉजिट तो कर लिया है, बैंक में डिपॉजिट हो गया है, हमारा कैश बुक में एंट्री आ गया है, लेकिन पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ. It is not yet cleared in the passbook. Are you all with me? कैश बुक में आ गया है लेकिन पासबुक में नहीं आया. तो अब सोचने का हुआ क्या होगा. सपोज दोनों बुक का बैलेंस 45,000 था,
This right hand side, can you see this hand? This is my cash book. This is my passbook. दोनों बुक का बैलेंस था 45,000 45,000. This is cash book. This is passbook. All of you are with me? अब 5,000 का चेक आया और कौन से बुक में एंटर हुआ है? Cash book increase. तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ के हो गया 50, जो दिख रहा है आपको मंथ एंड में. बट पासबुक का बैलेंस कितना है? Still 45. So you have to subtract. Still 45. Yes. Why? The check is Because not the check cleared is yet. not yet clear. So this is 50, this is 45. And if I tell you that this is 50, तो इसमें से पासबुक पे जाना है तो 5,000 प्लस करूं कि माइनस करूं? Plus. So I will subtract here check deposited but not collected. कितना? 5,000. So I will get the passbook balance as 45. क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस नहीं देते, नहीं तो स्टूडेंट कुछ भी प्लस माइनस का झोलझाल करके आंसर ले आते हैं. तो आपको नॉर्मली ये बैलेंस नहीं दिया होता है 45,000. ओके, तो आपने ढूंढा. कैसे ढूंढा? एक चेक डिपॉजिट हुआ था तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, पासबुक का बैलेंस कम था. कैश बुक का अगर 50 है तो पासबुक का कितना होगा? तो 45. -5 करोगे तब 45 मिलेगा. तो -5 किया तो 45 मिल गया पासबुक का बैलेंस. दिस इज द बैलेंस एज पर पासबुक. ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता. दिस इज थियोरेटिकल मेथड. प्रैक्टिकली तो दोनों बैलेंस दिए होते हैं आपको, सामने ही होते हैं नजर के. आप खाली चेक करते हो कौन से बुक में कौन सा एंट्री है, कौन से बुक में कौन सा एंट्री नहीं है. बराबर है? प्रैक्टिकली दोनों बैलेंस सामने होते हैं. ये थियोरेटिकल सम्स है आपके, थियोरेटिकल सम्स. थियोरेटिकल सम में एक बुक का बैलेंस पता होगा, दूसरे बुक का ढूंढना है. ओके, अब इमेजिन करो, मैंने क्या सोचा? 45 सोचा. आप कोई भी रैंडम फिगर ले लो. आप इमेजिन करो दोनों का बैलेंस 1 लाख था. इमेजिन करो दोनों का बैलेंस 1 लाख था. आर यू ऑल विथ मी? चेक आया 5,000 का चेक आया. अपना इंपॉर्टेंट अमाउंट क्या? वो 5,000 का चेक आया. कौन से बुक में रिकॉर्ड किया? बताओ फटाफट. Cash book. कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा? नहीं. क्योंकि ये Check चेक clear अभी ही नहीं हुआ. तक क्लियर ही नहीं हुआ है. सो कैन आई से कैश बुक इज एट 1,05,000 एंड पासबुक इज एट 1 लाख? Yes. Ultimately 5,000 less. Yes. If this is 1,05,000, this is 1 lakh. If this is 2,05,000, this is 2 lakh. If this is 15,000, this is 10,000. If this is 25,000, this is 20,000. If this is 35,000, this is 30,000. Any random figure you take na yaar. Ultimately, passbook is less na by 5,000. Yes. So what am I supposed to do? -5. Yeah. From the cash. From the cash book balance, I'll subtract 5, so I'll arrive at the passbook balance. बैठा दिमाग में? Yeah. यही चीज करनी है. यही चीज करनी है हर एक आइटम ऑफ डिफरेंस के लिए, हर एक रीजन ऑफ डिफरेंस के लिए. वन मोर एग्जांपल ध्यान से सुनना. इसी सम को आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं. मैंने बैलेंस तो बोल दिया है, ये 50,000 था कैश बुक का, ये चेक हो गया 5 वाला. अभी एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि मैंने 28 अप्रैल को एक चेक इश्यू किया था. इश्यू मतलब पे किया था किसी को. ओके, पे किया था, कैश बुक में एंट्री कर दी है, बट अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है. ओके, ऑपोजिट है. तभी मैंने रिसीव किया था, अभी मैंने पे किया. ठीक है, हाउ विल यू थिंक? दोनों का बुक का बैलेंस, लेट अस से इट वाज 1 लाख रुपीस. आर यू ऑल विथ मी? एनी रैंडम फिगर यू टेक, जो पसंद में है. 1 लाख रुपीस में ले रहा हूं सपोज. दोनों बुक का बैलेंस था 1 लाख. ओके, अब ड्यूरिंग द मंथ आपने एक चेक इश्यू किया था. इश्यू का मतलब क्या? पैसा आया कि गया? So balance will और decrease. कौन से बुक में से गया होगा? Cash. कैश बुक. सपोज 8,000 का चेक था, 8,000 का चेक था, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा. हाँ. पक्का? क्योंकि आपने चेक पे किया है ना, पैसा गया है.
गया है तो दोनों जब 1 लाख पे थे उसके बाद चेक गया, वो एंट्री खाली कैश बुक में किया है, तो कैश बुक हो जाएगा 92,000। यस और नो? क्यों 92? Because it is Yes, subtracted check. from Because cash बिकॉज book इट already. इज पेड चेक। लास्ट एग्जांपल में क्या था, रिसीव्ड चेक, तो ये 1,05,000 हो गया था, ये 1 लाख पे था। अब ये 1 लाख से हो गया 92, बट पासबुक अभी भी कितने पे? 1 lakh. 1 लाख पे। तो इफ आई टेल यू कैश बुक इज 92, तो व्हाट इज पासबुक? यू विल से 1 लाख। सो इनडायरेक्टली इफ कैश बुक is at 92, this is 1 lakh, मतलब passbook is more than the cash book by 8,000। Yes. अगर ये 92 है तो ये 1 लाख, ये 192 है तो ये 2 लाख, ये 292 है तो ये 3 लाख, ये 392 है तो ये 4 लाख। आर यू ऑल विथ मी? Yes, yes, yes. Any damn example, this is plus 8,000. Now if your cash book is at 50,000, what is passbook? 58. Yes. So what will I do? Plus check issued but not presented, ये 8,000 ऐड कर दो तो आपको पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? 40 lakh. डेफिनेटली मिल जाएगा। कैसे मिला? 50 -5 वो पहला वाला रीजन का 45 प्लस 8 दूसरा वाले एक रीजन का, तो ये हो जाएगा 53,000। तो ऐसे हर एक रीजन के वजह से बैलेंस डिफर हो रहा है कैश बुक और पासबुक का। हमें खाली उन रीजंस को प्लस या माइनस करके दिखाना है। प्लस या माइनस कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है आपको? दोनों बैलेंस को खाली कंपेयर करो। अगर आप कैश बुक पे हो और पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो प्लस कर दो, पासबुक का बैलेंस कम है तो माइनस कर दो। यही अगर कैश बुक का ज्यादा है तो यहां से माइनस करो, कैश बुक का कम है यहाँ पे प्लस करो। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। ज्यादा एग्जांपल करोगे, जितना एग्जांपल करोगे और क्लियर बैठेगा। ये दो क्लियर हुए। पहले चेक आया था, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ था, फिर चेक इश्यू किया था तो कैश बुक से गया था। ओके, नाउ लिसन, both the books are letters say on 1 lakh, both the books are letters say on 1 lakh. Okay, I give you one more reason of difference. During the month of April, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिया 500 रुपीज, जो आपको मालूम नहीं है। बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिया 500, जो आपको मालूम नहीं है। दोनों का बैलेंस 1 लाख था, ठीक है। बैंक ने चार्जेस काटा, तो कौन से बुक में एंट्री आया होगा? Only passbook. ओनली पासबुक, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है अप्रैल के महीने में। दोनों 1 लाख पे, बैंक ने 500 रुपया काट लिया, तो पासबुक में क्या हुआ होगा? बैलेंस बढ़ गया होगा कम हुआ 99. कम हो गया होगा। And cash book is 1 lakh. एंड कैश बुक इज स्टिल एट 1 लाख। अग्री ऑल ऑफ यू? तो कैन आई से इन दिस मंथ ड्यू टू दिस 500, कैश बुक बैलेंस इज मोर देन द पासबुक बैलेंस बाय 500? Yes. If cash book is 1 lakh, this is 99,500. If cash book is 10,000, this is 9,500. If cash book is 20,000, this is 19,500 passbook. Yes or no? So all in all, passbook is less than the cash book by 500 due to this reason. Correct? So if cash book is 50,000, what is passbook? 49,500. How will you arrive from 50 to 49,500? Will you add or will you subtract? Subtract. Subtract from Less bank charges paid by bank. तो आपका फाइनल बैलेंस हो जाएगा अभी 53 के जगह 52,500. दैट विल बी द पासबुक बैलेंस। ये जो हमारे एग्जांपल में मिला ना क्लोजिंग बैलेंस पासबुक का, ये ऑटोमेटिकली मिलेगा अपने को 52,500। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हमारे पास 50 है और 52,500 है, ये दोनों सामने है। तो हम लोग देखेंगे कि ये अलग क्यों है, तो हमें ये रीजन पता चलेंगे कि ये चेक डिपॉजिट हुआ था, इश्यू हुआ था लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ये बैंक चार्जेस पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है। तो हम लोग रीजन ढूंढते हैं प्रैक्टिकली। थियोरी में आपको रीजन दे देंगे, आपका काम आसान कर देंगे। यू विल बी गिवन द रीजन and you just need to do plus or minus, plus or minus, plus or minus.
and get the balance of the other. Sir, we always go from cash balance to passbook balance. It can be other way also, passbook to cash book also. Passbook to cash In the book, question. they will be mentioning it in the question, clear. What if you do passbook to cash book? What will you do in case of passbook to cash book? We'll subtract the amount. Meaning will be opposite. उल्टा, जो प्लस किया वो माइनस, जो माइनस किया वो प्लस. पहले ये कंसेप्ट बैठा दिमाग में, क्या किया मैंने यहाँ पे? दोनों बुक का बैलेंस सेम अज्यूम करके चलने का, फिर जो बुक में एंट्री आया उस बुक का बैलेंस ज्यादा है, दूसरे बुक का ढूंढना है तो माइनस, अगर कम है दूसरे बुक का ढूंढना है तो प्लस. बात समझ आई? दिस इज व्हाट वी विल डू इन द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट वी डू इन बीआरएस. आज के लिए इतना काफी है. आज आपको क्या करना है, तो थ्योरी पार्ट थोड़ा रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए. बीआरएस का स्टार्टिंग में जस्ट अ सेकेंड, you have the textbook. BRS. अच्छा, इसमें थियरी नहीं दिया सर, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. टेक आउट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. Take out standard textbook. Standard textbook. Page number 184. Standard textbook page number 184, 185, 186. 184, 185, 186. Okay. 184, 185, 186. 3 पेज पढ़ने हैं बीआरएस के स्टार्टिंग के, जो मैंने आज बड़बड़ की है. ओके, वही दिखेगी आपको, जो आगे पीछे ट्रांजैक्शन हो गए दोनों बुक में. 184, 185, 186. वी मीट टुमारो, विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. सर, इसके लिए